اس گفتگو کی جانب بھی آپ کو لیے چلیں گے۔ حکومتی موقف سے آگے آپ کو ہم نے آگاہ کیا، جس میں حکومتی نمائندوں کا کہنا ہے کہ الیکشن ایک ہی دن میں ہوں گے، اور پورے شاہ محمود قریشی کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ یہ تجویز دی تھی، حکم نہیں، تجویز دی تھی کہ سیاسی جماعتیں بیٹھ کر گفت و شنید سے کوئی راستہ نکال سکتی ہیں تو انہیں اعتراض نہ ہوگا، اور وہ مل بیٹھ کر کوئی وے فارورڈ پر کسی سولوشن پر پہنچ سکتے ہیں تو بالکل وقت لے لیں۔ اس سوچ کو، اس مثبت سوچ کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف نے وہاں اپنی آمادگی کا اظہار بھی کیا، اور ایک 3 رکنی کمیٹی مذاکراتی عمل کے لیے تشکیل دی عمران خان صاحب نے، جس میں فواد چودھری صاحب، جس میں سینیٹر علی ظفر صاحب اور میں، ہم تینوں اس کے رکن منتخب ہوئے، اور ہمیں یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ ہم پی ڈی ایم الائنس کے ساتھ گفتگو کو آگے بڑھائیں۔ اسی تناظر میں پی ڈی ایم الائنس نے بھی اپنی ایک کمیٹی تشکیل دے دی۔ اس کمیٹی میں تقریباً ان کی سب جماعتیں آمادہ تھیں، ماں سوائے جے یو آئی فضل الرحمان صاحب، اور ان کے جو پی ٹی ایم کے صدر ہیں وہ آمادہ نہیں تھے، اور مذاکرات کے خواہاں بھی نہ تھے نہ ہیں۔ ہماری 3 نشستیں ہوئیں۔ پہلی نشست ہماری 27 اپریل کو ہوئی، دوسری نشست ہماری 28 اپریل کو ہوئی، اور تیسری نشست آج ہماری 2 مئی کو ہوئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے بحیثیت پارٹی کی کوشش کی کہ ہم کسی کنسنسس کی طرف آگے بڑھ سکیں، اور ہم نے جو ان نشستوں میں جن چیزوں پر اتفاق کیا وہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ نمبر 1، ہم اس چیز پر متفق ہوئے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، انہیں پولیٹیکل پارٹی، اگر آپ گفتگو بند کریں گے تو آواز آئے گی، ہم اس چیز پر متفق ہوئے کہ پولیٹیکل پارٹیز کو یہ انڈیور کرنا چاہیے کہ ہم کسی ایسے کنسنسس پر متفق ہو جائیں جو کہ ملک، عوام کے مفاد میں ہو اور آئین سے مطابقت رکھتا ہو۔ اس پر ہمارا اتفاق ہوا۔ دوسری چیز جس پر ہمارا اتفاق ہوا وہ یہ تھی کہ اس مذاکراتی عمل کو کوئی ڈیلیئنگ ٹیکٹک یا حربے کے طور پر استعمال نہیں ہونا چاہیے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے 4 اپریل کا انتخابات کا، اس کی آئین کی روح کے مطابق ہے، اس کو لیٹر اینڈ اسپرٹ ہم آگے لے کر چلیں۔ ہم اس چیز پر بھی متفق ہوئے کہ ہم اگر کس چیز پر متفق ہوتے ہیں تو پھر ہمیں اس کی امپلیمنٹیشن کا میکنزم بھی مرتب کرنا ہوگا، تاکہ ہم گفتن نشستن برخاستن تو نہ ہو جائیں، ہم انشور کریں کہ ہم آگے بڑھ سکیں۔ پی ٹی آئی کی جو انیشل پوزیشن تھی، میں اس کو آپ کی شاید علم میں بھی ہو، میں ریٹریٹ کر دیتا ہوں۔ پی ٹی آئی کی انیشل پوزیشن یہ تھی کہ آئین کے مطابق پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں 90 دن کے اندر انتخابات آئینی بندش ہے، اس میں گنجائش نہیں ہے، آئین کی پابندی ہے۔ اس لیے ہم 14
मई के इंतखाबात पर मुतमईन हैं और हम चाहते हैं कि 14 मई को मुल्क में इंतखाबात हो जाएं पंजाब के, और फिर उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा का अमल भी है वो भी अपने मंतकी अंजाम को पहुंचे। पीडीएम का जो इनिशियल स्टांस था वो चाहते थे कि जो इलेक्शंस हैं वो बैक वक्त सारे मुल्क में एक ही रोज़ किए जाएं, बशमूल पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, और जो डिसोल्यूशन है असेंबलीज की वो हो जब असेंबलीज की पार्लियामेंट्री टर्म का इख्तिताम हो, यानी कि 11-12 अगस्त, ये उनके जहन में था। इस पर हमने सैर हासिल बहस की, गुफ्तगू की और एक दूसरे के करीब आने की कोशिश भी की और एक दूसरे का नुक्ता नज़र समझने की कोशिश भी की। हम इस नतीजे पे पहुंचे कि पंजाब और सिंध की जो माफ़ कीजिए नेशनल प्रोविंशियल असेंबलीज ऑफ सिंध एंड बलूचिस्तान, हमारी तो दो हो गई है ना, नेशनल असेंबली, सिंध असेंबली और बलूचिस्तान की असेंबली should be dissolved on or before 14th of May। ये हमारा प्रपोजल हमने रखा और उसके पीछे लॉजिक थी। हम इस बात पर हमने कहा कि जब ये हो जाए तो इलेक्शंस फिर 60 दिन के अंदर होने चाहिए, और इस 60 दिन के इलेक्शन को हासिल करने के लिए, क्योंकि ये 90 दिन से आगे चले जाते हैं, तो फिर हमें इन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल कवर देना होगा, और उस कॉन्स्टिट्यूशनल कवर के लिए तहरीक इंसाफ नेशनल असेंबली में जाने के लिए तैयार है और वन ऑफ अमेंडमेंट के लिए तैयार है। हम इसको नहीं चाहेंगे ये कोई रीत बन जाए, आइन की वो लेटर एंड स्पिरिट बरकरार रहे, लेकिन इन हालात में जहां हम फंसे हुए हैं या फंसे हुए हैं, इससे बाहर निकलने के लिए हमने ये एक सजेशन वहां रखी। हम ये चाह रहे हैं कि जो हमारा आपस में अंडरस्टैंडिंग या मुआहदा हो, ये इन राइटिंग हो, ज़बानी नहीं लिखा हुआ हो, और हम इसको सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करें, सबमिट करें वहाँ, ताकि उनकी इंडोर्समेंट भी हासिल हो जाए और वो इसकी अमल दरामद और इम्प्लीमेंटेशन को इंश्योर कर सके। इसके साथ साथ हम इस चीज़ पर भी हमने अपना ज़हन दिया कि इलेक्शंस ऐसे माहौल में हों और ऐसे अंदाज में हों, यानी कि इस तरह के साफ और शफाफ हों कि उनका नतीजा कबूल करने में किसी को दिक्कत ना हो, ताकि एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ इलेक्शन रिजल्ट्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम नहीं चाहेंगे कि इलेक्शन हो जाएं और उसके बाद उनके फैसलों पर कोई आमादा ना हो। हमारी इस तजवीज़ जो हम समझते हैं, हमने खासी लचक दिखाई और कौमी तफाक़ राय की खातिर हमने ये लचक दिखाई कि हमने एक दिन की तजवीज़ कबूल की, हमने केयर टेकर सेटअप की जो ख्वाहिश है उसको तस्लीम किया, हमने जो 54 दिन की जो इलेक्शन एक्ट के तहत जो कदगन है उसको तस्लीम किया और हम आगे बढ़े। हम समझते हैं कि इस पर
PDM और हमारा इत्तफाक ना हो सका तारीख पर। डिसोल्यूशन एंड इलेक्शंस, होल्डिंग ऑफ इलेक्शंस, इस पर हमारा इत्तफाक ना हो सका। तहलील और इलेक्शन की डेट पर हमारा इत्तफाक ना हो सका। हम करीब आए और इत्तफाक ना हो सका। अब क्योंकि हमने दियानतदारी से कोशिश की, और मैं ये भी कहता चलूं, हमने इस कोशिश को जारी रखा उस माहौल में जो माहौल हमारी वजह से नहीं, हमारे हुकूमती साथियों की वजह से, जिसको विशिएट भी किया गया। और ये मैंने आज उस नुक्ते को उठाया। मिसाल के तौर पर हमने दूसरी नशिस्त के लिए हम आए और बैठे तो पता चला कि 33 के लगभग हमारे जो कारकुनान हैं बिला वजह उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तो हमने कहा कि देखिए, एक तरफ हम मुज़ाकरात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप गिरफ्तारियां कर रहे हैं, तो ये तो एक तज़ाद है। उन्हें हमारी बात की मंतक समझ आई और फिर डार साहब ने इंटरवीन किया और वजीर दाखिला को कहा और उन लोगों को रिहा किया गया। आपके सामने है कि हमारी दूसरी नशिस्त खत्म होती है, हम रात को लौटते हैं तो ब्रेकिंग न्यूज़ मिलती है कि हमारे पार्टी के सदर चौधरी परवेज इलाही साहब के घर पर धावा बोल दिया गया। और आपने देखा, और उसको दोहराने की जरूरत नहीं है, पूरी कौम ने देखा जो कुछ हुआ। प्रोटेक्टिव बेल थी, जना खाने में दाखिल हुए, सर्च वारंट नहीं था, और जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। मुकदमात की बौछार जारी रही, मन घड़त झूठे मुकदमात की एक दास्तान है, एक तवील है। और आज भी आपने देखा कि लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान साहब तशरीफ ले गए और उन्होंने वो 122 मुकदमात की फहरिस्त जो है वो मीडिया ने आपके सामने रखी। ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट, अली अमीन गंडापुर के साथ जो हुआ, एक केस में जमानत तो दूसरे में गिरफ्तार, दूसरे में जमानत तो तीसरे में गिरफ्तार, और ये आंख मचोली चल रही है। इसके साथ साथ आपने ये भी देखा कि ख्वाजा आसिफ साहब ने जो स्टेटमेंट दिया और जो उनके बयान आए, उन्होंने माहौल को साजगार नहीं, पेचीदा किया। जावेद लतीफ़ साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो आपकी नज़र से गुजरी है, और वो भी कोई इतनी हौसला अफजा नहीं थी। एहसन इकबाल साहब की जो गुफ्तगू है वो भी आपके सामने है। अब क्योंकि हमारी तजवीज़ जो हमारी नज़र में मुस्बत थी, काबिल अमल थी, आइन के दायरे के अंदर थी, उस तजवीज़ को हमारे जो सरकारी दोस्त हैं उन्होंने तस्लीम करने में उन्हें दिक्कत महसूस हो रही है। चुनांचे हमने फैसला किया है कि जिस स्पिरिट और नेक नियति से हम बैठे थे और हमने कोशिश की, हमने फैसला किया है कि हम सुप्रीम कोर्ट को उनकी खिदमत में हाजिर होंगे और हम अपना मौक़िफ़ इन राइटिंग बता देंगे कि हमने क्या किया और कहाँ कहाँ हमने लचक दिखाई, तो हम उनकी खिदमत में पेश कर देंगे। और हम उनसे ये गुजारिश करेंगे, क्योंकि हमारी पेशरफ इन मुज़ाकरात में नहीं हो सकी, पंजाब के इलेक्शंस जो 14 तारीख है, जो उनका फैसला है, तहरीक इंसाफ चाहेगी इलेक्शंस 14 तारीख को करवा दिए जाएं। और हमारी ख्वाहिश होगी कि जो खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शंस हैं उनकी भी हम ताख़ीर नहीं चाहते, और वो पेशावर हाई कोर्ट में पेंडिंग है, मसला ज़ेर इल्तवा है। हम चाहेंगे उसका फैसला भी जल्द अज जल्द हो और खैबर पख्तूनख्वा में भी इलेक्शंस हों। शुक्रिया। थैंक यू। अच्छा, ये बताएं सर, आपको
हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात अब इस नहज पर आकर रुक गए हैं। तहलील और इलेक्शन की तारीख पर इत्तेफाक ना हो सका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब रुजू करेगी आला अदलिया से और आला अदलिया को उन तमाम हक़ाइक़ से आगाह करेगी जो अब तक इस मुज़ाकरात के हवाले से उसने लिए, और साथ ही साथ उसकी इस्तदा होगी कि चूँकि इलेक्शन की डेट के हवाले से और असम्बलियों की तहलील के हवाले से मुज़ाकरात कामयाब ना हो सके, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट इन मुज़ाकरात की रोशनी में और इन हालात की रोशनी में 14 मई को पंजाब में होने वाले इलेक्शन जो शेड्यूल थे, जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था, उस हुक्म पर अमल दरामद कराए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है कि 14 मई को पंजाब में इलेक्शन करवाए जाएं और साथ ही खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन के हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट मजीद हिदायत दे और उसके प्रोसेस को भी आगे बढ़ाया जाए। आज उनसे कबल जब